डे फर्स्ट सेशन ऑफ एम्ब्रॉयडरी कोर्स विद अलीपो। आप सभी का स्वागत है आज के डे 1 कोर्स के एम्ब्रॉयडरी कोर्स अलीपो के साथ। So I'm your host Monideepa from Team Alipo. So we are an upskilling academy for women wherein providing instructor-led live course in different categories like makeup, baking, cooking, health and many more. So we have trained almost 3 lakhs women so far and we are ready to get started with new batch of embroidery course with all of you. मैं आपकी होस्ट मोनीदीपा टीम अलीपुर से। हम एक अपस्किलिंग एकेडमी है जहाँ पे हम एक इंस्ट्रक्टर लेड लाइव कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, वो भी डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे कि मेकअप, बेकिंग, कुकिंग, हेल्थ और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लाख के ऊपर वुमेन को ट्रेन कर चुके हैं और हम लोग अभी रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए ये नया बैच एम्ब्रॉयडरी कोर्स आप सभी के साथ। बिफोर proceeding ahead with our session, I would like to tell few guidelines. सेशन शुरुआत करने से पहले मैं कुछ गाइडलाइंस बोलना चाहूँगी। We will be speaking in both languages. हम लोग दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश का ही हिंदी में रिपीट करेंगे। We will be translating the same English sentence in same Hindi word. So the second point would be the recordings will be sent after the session in the group. हम लोग recordings session खत्म होने के बाद आपको group में भेज देंगे and we will be enabling the chat after the process and explanation is completed. हम लोग यहाँ पे chat enable करेंगे जब तक यहाँ पे ऋचा अपने process और explanation complete करती हैं तब तक। In our embroidery course, we are going to have a 5-day course. In this, we are going to learn different kind of embroideries like table cover, then the scarf, then the chinkari flower, petals and pretty mask, फुलकारी borders for your bed sheet and pillow covers. ऐसे बहुत सारी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं इन day 1 से लेके day 5 तक। I'm really excited about the embroidery course as it is absolutely a new to me as well, and would love to learn and practice it myself as well. Here our instructor Richa. Welcome Richa to our embroidery course. She's an expert in garment and pattern making, having experience of 17 years. She has credentials of international designing experience as well. तो हमारे ऋचा इंस्ट्रक्टर ऋचा को वेलकम करते हैं गाइस। वो एक्सपर्ट है गारमेंट और पैटर्न मेकिंग में और उनका 17 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है और उनका क्रेडेंशियल्स है इंटरनेशनल डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस का। Let's start ahead with our today's session, which would be on learning on how to make table cover or table runner using कांता embroidery basic stitch. तो हम लोग आज सीखेंगे कि कांता बेसिक स्टिच में टेबल कवर और या फिर टेबल रनर कैसे बनाते हैं। हाय रुचा, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you, Monika? I'm doing great. Yes, let's start ahead with our session today. Yes. So, hello everyone, and a very good afternoon. I hope everybody is safe and sound in their houses. So, let's start today's session. I'll be taking you through the embroidery class that we have started today. It's a 5-day long class. And in today's class, we'll be taking you through Katha embroidery. So, Katha embroidery is basically from Bengal, right? And it started in late 70s, like 18th century and all, when the freedom fighters were there and there was too much of chaos, too much of what do you call slavery and all was there. People didn't have clothes to cover themselves. So this embroidery started with the rags. जो भी पुरानी like ये शुरू हुई थी बहुत पहले जब बहुत like वर्ल्ड वॉर्स चल रही थी और खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए ओढ़ने के लिए कोई कपड़े नहीं होते थे, तो उस टाइम पे हम ये एम्ब्रॉयडरी का लाइक जन्म हुआ था। बिकॉज उस टाइम पे वो क्या करते थे, जैसे ओढ़ने के लिए उनको जो पुराने कपड़े होते थे, दिस एम्ब्रॉयडरी एक्चुअली स्टार्टेड ऑन द ओल्ड क्लोथ्स, नॉट ऑन द न्यू क्लोथ्स।
सो व्हाट दे डिड, जो पुरानी चादरें होती थी उनको वो एक के ऊपर एक लेयर करके, ताकि वो थोड़ी थिक हो जाए, उसको स्टिच कर दिया जाता था विद द रनिंग स्टिच, विच वाज एक्चुअली द काथा स्टिच। वो इसलिए स्टिच कर दिया जाता था ताकि वो सब लेयर्स जो इकट्ठी रहे और विंटर्स में और बाकी समय में उनको ओढ़ने के लिए, रात में सोने के वक्त, तो इसीलिए उसको दोहर भी बुलाया जाता था, या ओढ़ने के लिए चादर या रजाई भी बोलते थे। तो दैट इज हाउ काथा वर्क केम इनटू लाइक एग्जिस्टेंस, उसका वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो I'll just show you few of my Katha collection things, and then we'll move ahead with what all stitches are used. Very basic stitches are used in Katha embroidery, but like it's beautiful. If you wear a Katha sari, if you put a Katha, what do you call, a bed cover or a runner, your house looks really outstanding. बहुत अच्छा और एक traditional stitch है. Very easy to do. You can do it on your own using simple techniques. And अभी क्योंकि सब लोग फ्री हैं घर में, you can use it as a time pass of yours, and plus you can make some beautiful things out of it. Fine, so let's move ahead. I'll just show you the different Katha things that I have. Can you have the camera now? This is a kurta of mine. If you can see the stitches, see this is Katha work. Very simple Katha work. Very simple stitches are used, not much complicated. Fine. Then this is a stole, you can say, or you can even convert it into a table runner. So this I wanted to show you. This is how it started. So ये देख रहे हो, ये एक stole है. You can wear it with a lehenga, or you can wear it on top of a plain sari, or you can even spread it on a table and make it a table runner. Fine. तो ये देखिए दोनों तरफ से different है. This fabric is different and this fabric is different. So they have joined these two fabrics together and then did the Katha stitch. So this is how it started. In the beginning, it was done like this only. Amazing. Fine, with layers of fabric. They used to call it layers of rags. मतलब पुराने जितने कपड़े होते थे उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक, या पुरानी साड़ियां होती थी उनको लेयर करके फिर काथा करा जाता था, तो उससे थोड़ी थिकनेस मिल जाती थी, और वो जो पुरानी साड़ियां थी उसको एक नया इनोवेशन मिल जाता था, क्योंकि वो जहां से अगर कुछ फटी भी है तो वो लेयरिंग में चली गई, तो उससे एक नई चीज बनकर आ जाती थी. So this is a stole, and see this is on both the sides. You can wear it on both the sides. You can spread it on your bed cover also on the side. You can spread it on a table with two different designs, because two different fabrics are used here. Fine. All right. So, Richa, could you explain that in Hindi as well, in short, please? Yeah. ये जिस तरह से स्टोल है, ये दो अलग अलग फैब्रिक्स को यूज करके बनाया है. तो आप देखो कि यहाँ इस फैब्रिक का प्रिंट अलग है और इस साइड में इसका प्रिंट अलग है. फाइन. तो इन दोनों को लेयर करके और फिर रनिंग स्टिच किया है. तो दिस रनिंग स्टिच इज कॉल्ड द बेसिक काथा स्टिच. फाइन. और इसी तरह से वो लोग बना के और फिर अपने ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए यूज करते थे, ताकि पुरानी चीजों को हम एक नया इनोवेशन दे सकें. ठीक है, ठीक है. एक नई चीज बना सकते हैं उससे. वैसे ही देखिए ये मेरी काथा की साड़ी है. So you can see how simple stitches are there. Just the running stitch, herringbone stitch. यहाँ पे simple जो हम कच्चा धागा बोलते हैं वो वाला स्टिच यूज किया है, और कहीं कहीं पे भरवा स्टिच यूज किया है जिसको हम herringbone स्टिच बोलते हैं. इसमें बहुत लिमिटेड स्टिचेस होते हैं जो यूज करते हैं, और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल बनी हुई है. आप इसी तरह से अपने लिए बेड कवर, cushion covers, like your table cover, table runner, कुछ भी बना सकते हो. Even you can do such kind of embroidery on a mask and sell. तो आप आराम से घर में बैठ के you can make nice and innovative things. नई नई चीजें बना के आप अपने घर को भी सजा सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो. अब मैं आपको एक बेड कवर दिखा रही हूँ, और you can say it's a table cover. Whichever way you want, you can spread it and use it. See the stitches that they have used. It's simple running stitch. कच्चा टाका है यहाँ पे, साथ में थोड़ा सा इन लोगों ने herringbone यूज किया है, फिलिंग स्टिच यूज किया है, थोड़ा भरवा स्टिच यूज किया है,
और थोड़ा सा इंटरवीविंग वाला स्टिच यूज किया है, दैट्स इट, एंड इट्स कम आउट सो ब्यूटीफुल। और हर कलर के ऊपर काथा लुक्स ब्यूटीफुल। यू कैन मेक इट ऑन रेड, यू कैन मेक इट ऑन ब्लैक, लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स, सब पे बहुत सुंदर दिखता है, राइट? So these were few of my collections. So I thought I should show it to you so that you get an idea. And mostly do it on a cotton fabric. If you are a beginner, do it on a cotton fabric. तो वो आपके लिए easy होगा handle करने में. Then as you become a pro, जैसे जैसे आपको experience आता जाता है, वैसे वैसे आप इसका fabric और fine ले सकते हो. Like you can do it on a sari, a kurta, anything. Even if it is stitched, you can do it on top of it to give it a nice look. अब इसमें जो थ्रेड यूज होता है, दिस कैन बी कॉटन और सैटिन, कुछ भी, कोई भी थ्रेड आप यूज कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू. Today as we is the first class and the first embroidery that we'll be using, so today we'll be just concentrating on cotton thread. So this is the fabric that I've kept, cut and kept for my runner. We'll be making a table runner out of this. I hope it's visible and my audio is clear. Yes, absolutely. Okay. So first of all, what you're going to do is, first of all, just iron your fabric properly. ये मैंने रनर के लिए कपड़ा काट के रखा है. आपके टेबल के अकॉर्डिंगली आपको जो भी साइज चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली काट सकते हो. फाइन. जैसे मैंने जो कट किया है, दिस इज 19 इंचेस long and the width is around 30 inches. Fine. So आपके टेबल का कितना width है, आपको कहाँ पे बिछाना है, अगर आपको किसी कैबिनेट में बिछाना है, कहीं पे आपको लाइक बार में बिछाना है और सेंटर टेबल पे बिछाना है या डाइनिंग टेबल पे बिछाना है, तो आप अकॉर्डिंगली उसके कट करोगे. फाइन. डोंट फॉलो माय मेजरमेंट बिकॉज दैट माइट बी लिटिल स्मॉलर और लिटिल बिगर फॉर यू. तो आप जिस तरह भी बिछाना है उसके मेजरमेंट्स फॉलो करिए. फाइन. So I'll just quickly iron this and then we'll do the tracing. All right. So यहाँ पे iron करने के बाद हम लोग tracing करेंगे. Okay. So Richa, is ironing very important for any kind of fabric used? Sorry? क्या ironing करना important है जो भी fabric use कर रहे हैं उसके लिए? Yes. Ironing is very important because ironing करने से एक neat finish आ जाता है और जब हम trace करते हैं ना, तो ये जो अभी इसमें creases हैं, this will not be there and we'll be able to trace our design properly. So that is the main aim of ironing. अच्छा, okay. So basically it would be spelled as in Bengali kata, like they have to say it in NTA kata. Yes. क्योंकि मैं तो बंगाल से हूँ तो वही मुझे समझ में आया कि काता बोलते हैं इसे. एंड इट्स वेरी Right. फेमस यू नो फॉर स्पेशली फॉर दोज चिल्ड्रंस मेकिंग द बेड स्प्रेड एंड Right. लाइट You're absolutely right. ब्लैंकेट एंड पिलोज. I used to have that when I was a kid. Yes. And you must have seen a lot of Katha as you're from Bengal. Yes. And we must be having a lot of audience also from Bengal, so they must be able to relate it. Yes, of course. Okay, let's see. Those who are from West Bengal, please raise your hand. जो भी हमारे साथ यहाँ पे West Bengal से हैं, please अपना हाथ raise कीजिए. So specifically, this kata stitching is going to be done for the Bengali version. Yes, we have Rina ma'am here and Nandita ma'am. Amazing. Wow, that's great. Hello everyone from Bengal. We still don't have any lockdown. Sorry? We still don't have any lockdown. Yeah, really, actually. We are the ones who are facing all the problem from the north. Yes. Anyhow, I think, I hope situations are fine in Kolkata and other places of West Bengal. At the moment, they are better, like not worse like Mumbai or Delhi parts. Right, it's terrible everywhere, I guess. Yes. It's better to stay home, do some creative work rather than moving out. Absolutely, and that's why we are here to rescue. Alipo यहाँ पे rescue के लिए है कि घर बैठ के आप हर एक ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, नए चीज़ें बना सकते हैं, सीख सकते हैं. Basically, lockdown before which was happened, like
जो पहले वाला लॉकडाउन था, मैं इतना कुछ नया सीखी अलीपो कोर्स से, which was really amazing. I didn't know to cook, I didn't know to bake, I didn't know to stitch, nothing to be Right. honest. And I started all these things and my families are astonished. Like मेरे family मतलब एकदम shocked है कि Surprised actually. या कैसे इतना अच्छा मतलब expert हो गई. Right, right, right. Very true. So I'll just quickly tell you the names of the stitches that we'll be using here. So I'll move on to the board. All right. सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचिंग जो है वो नाम दिया जाएगा, तो बोर्ड में दिखाया जाएगा आपको. So, Richa, could you let us know that what material are you using for the table runner? Yes, yes, I'll be telling you everything in detail. All right. So guys, we have already sent the PDF in the group, so please look into it. जो PDF हम लोगों ने भेजा है ग्रुप में, वो ज़रूर देख लीजिएगा रेफरेंस के लिए. These are the 5 basic stitches that we'll be using for Katha. One is the running stitch. We call it running stitch या फिर कच्चा त्रोपा भी बोलते हैं या कच्चा धागा भी बोलते हैं. Then इसको basically in Katha they call it the Katha stitch. This is the main stitch that they do. Because of this stitch they recognize that this is Katha work. Then we have the next one and it looks like just dashes. Fine. Then the next one is stem stitch. जिस भी स्टिच को हम यूज करते हैं एक टहनी बनाने के लिए उसको बोलते हैं स्टेम स्टिच. फाइन. जैसे हमको अगर ये फ्लावर बनाना है, सपोज वी हैव अ फ्लावर एंड वी आर मेकिंग अ स्टिच विद दिस, दिस इज कॉल्ड द स्टेम स्टिच. तो जो स्टिच हम यहाँ यूज करेंगे उसको हम स्टेम स्टिच बुलाते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज हेरिंग बोन. इसको हम भरवा स्टिच भी बोलते हैं हिंदी में. So if we want a leaf and we want to fill it, we can do it with Katha stitch or we can do it with herringbone. So herringbone is like this. This is herringbone. Fine. I'll be showing you each and every stitch. I'll do it on the fabric and then I'll show you. Then the next one is satin stitch. कई places पे आपको भरने के लिए अगर satin stitch use करनी है तो हम इसमें satin stitch का भी use कर सकते हैं. So that is like fine. So this is satin stitch. The next one is chain stitch. Chain stitch को हम इस तरह से बोलते हैं. ये इंटरकनेक्टेड स्टिच होती है, एक के अंदर एक निकल के जाती है, इसीलिए इसको हम चेन स्टिच बोलते हैं. तो हम एक्चुअली में चेन स्टिच यहाँ नहीं यूज करके हम इसका एक वर्जन यूज करते हैं जिसको लेजी डेजी बोलते हैं. तो कहीं कहीं आप देखोगे फ्लावर्स में लेजी डेजी यूज हुआ है. तो दैट इज एक्चुअली अ वेरिएशन ऑफ चेन स्टिच. Fine. So these are the basic stitches that we'll be using. Now I show you how to use it and where to use it and what fabric and what material we are going to use. Okay, so Richa, could you explain that in Hindi as well, please? Yeah. ये रनिंग स्टिच है. ये सिंपल जैसे हम सिर्फ सुई अंदर डालते हैं बाहर निकालते हैं तो इस तरह की स्टिच आती है. तो इसको बोलते हैं काथा स्टिच या रनिंग स्टिच. फाइन. वैसे ही दूसरी स्टिच है जिसको बोलते हैं स्टेम स्टिच. ये यूज होती है जहां पे कोई भी एक फ्लावर की हम टहनी बना रहे हैं तो उसको उस टहनी को हम स्टेम बोलते हैं इंग्लिश में. तो इसीलिए वो स्टिच हम यूज करेंगे और मैं आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी, अच्छे से दिखाऊंगी करते हुए कि वो स्टिच कैसे करते हैं. उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टिच आती है वो है हेरिंग बोन स्टिच. ये भरवा स्टिच होती है और ये किसी भी चीज को भरने के लिए यूज होती है. फाइन. उसके बाद नेक्स्ट है सैटिन स्टिच. सैटिन स्टिच भी एक तरह की भरवा स्टिच है. जैसे बोलते हैं भरवा एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं या भरवा हाथ का काम कर रहे हैं, तो वो सारी स्टिचेस ये होती हैं. लाइक हेरिंगबोन हो गई, सैटिन हो गई, वैसे बहुत सारी होती हैं. तो हम जो आज एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं उसमें हम सैटिन और हेरिंगबोन का यूज करेंगे भरवा स्टिच के लिए. उसके बाद हमारे पास चेन स्टिच है. आपने देखा होगा कहीं कहीं चेन स्टिच यूज होती है, एक के अंदर एक डाल के लूप्स को और फिर चेन बनाई जाती है, तो उसको हम चेन स्टिच बोलते हैं.
उसी के फ्लावर्स बनते हैं, जिसमें हम चेन स्टिच को ही यूज करके बनाते हैं और उसका नाम होता है लेजी डेजी। फाइन। अभी मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगी तो आपको ये सारी चीजें और थोड़ा समझ में आएंगी और थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। तो हम मूव करते हैं अपना टेबल की तरफ, जहाँ पे हम बाकी चीजें देख सकते हैं। ठीक है। So, Richa, what would be the size of the fabric, as in the width of the fabric? Yeah, I'll just show you. The size of the fabric is totally on you. Fine. आपके ऊपर है आपको किस साइज का फैब्रिक लेना है। Like मैंने यहाँ पे खादी कॉटन लिया है and this is like 41 inches in length and 19 inches in width. ये है मेरा 19 inches. Fine. So मैंने 41 by 19 का width लिया है because मेरे टेबल के साइज के अकॉर्डिंगली this is fine. ये इसका कोई फिक्स साइज नहीं है, आप जो भी साइज का बनाना चाहते हैं आपके टेबल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उस साइज का कट कर सकते हैं। फाइन। All right. नाउ आई हैव प्रिंटेड आउट दीज पैटर्न्स फॉर यू ऑल। तो आप इसमें देख सकते हो ये सारी स्टिचेस इसमें भी यूज हुई हैं। वैसे ही एक ये है एंड देन आई हैव दिस वन। फाइन। सो we can yes, have our own pattern, right? अगर हमारा खुद का पैटर्न है तो वो भी रख सकते हैं, right? yes, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यू कैन प्रिंट आउट योर पैटर्न एंड देन यू कैन ट्रेस इट। और अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो यू कैन मेक इट फ्री हैंड ऑल्सो। पर फ्री हैंड में क्या होगा कि पूरा सिमेट्री नहीं आएगी। देयर विल बी नो सिमेट्री एज सच, इन द सेंस हो सकता है ये लीव्स कहीं बड़ी और कहीं छोटी बन जाए। तो वी वांट द एंटायर थिंग टू लुक आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए, सिमेट्री में रहना चाहिए। तो दैट्स व्हाई विल प्रिंट आउट ऑन पेपर, या आप एक व्हाइट शीट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए और फिर वो वाले फ्लावर्स को ट्रेस कर लीजिए। यू कैन डू इट इन दैट वे एज वेल। ठीक है, ठीक है। Now this is the butter paper. If you want, अगर आप ये वाले प्रिंट को खराब नहीं करना चाहते हो, आप बटर पेपर को इसके ऊपर रखो और पेन से ये डिजाइन जो भी आपको ड्रॉ करना है आप इसमें ले सकते हो। पेन से पूरा ड्रॉ कर लो और फिर इससे ट्रेस करेंगे हम। फाइन। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस टुडे वी आर डूइंग इट डायरेक्टली। तो मुझे ये जो डिजाइन है इसका, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर। आप चाहो तो इसको एक साइड से भी ट्रेस करते हुए आ सकते हो और पूरा ट्रेस कर लो। फाइन। और अगर इतना सारा नहीं बनाना है तो यू कैन ट्रेस इट इन जस्ट द सेंटर। फाइन। तो हम इसको सेंटर से स्टार्ट करते हैं। अब सेंटर मार्क करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लोगे। यू जस्ट फोल्ड योर फैब्रिक in half, put a crease mark with your thumb and a nail, and then again fold it in half and put a crease mark with your thumb. आप अपनी उंगली या अंगूठे की सहायता से एक crease mark बना लीजिए। फाइन। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सेंटर में crease mark मिल गया है। दैट मीन्स फैब्रिक का सेंटर ये है। फाइन। तो अब हमको अगर ट्रेस करना है तो हम उसी तरह से ये पेपर का भी सेंटर ले लेते हैं ताकि हमारे डिजाइन का भी सेंटर फैब्रिक के सेंटर में आए। तो ये हमारा सेंटर आ गया है फैब्रिक का और पेपर का। फाइन। नाउ विल पुट कार्बन पेपर। इस तरह से कार्बन पेपर अवेलेबल है मार्केट में, लाइक ब्लू, देन ब्लैक, देन दे हैव इवन लाइटर कलर ब्राउन पेपर, कार्बन पेपर भी मिलता है, जैसे क्रीम कलर में या व्हाइट कलर कार्बन पेपर भी होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपका फैब्रिक डार्क कलर का है तो आप लाइट कलर के कार्बन पेपर से भी ट्रेस कर सकते हो। फाइन। तो आज हम आपको कार्बन से ट्रेस करना बता रहे हैं। इन द अदर क्लासेस आई विल शो यू हाउ टू ट्रेस इट विद chalk and kerosene and all. Fine. So we'll try to cover all the various types of tracings. तो हम इसके बीच में अपना कार्बन पेपर रख देते हैं।
कार्बन पेपर का जो ब्लू साइड होगा ये हमेशा फैब्रिक की तरफ फेस करेगा। फाइन, तो ये मैंने बीच में रख दिया है। इसके ऊपर मैं अपना डिजाइन रखूंगी और मैच कर लूंगी कि ये सेंटर में। फाइन, इफ यू वांट यू कैन पिन दिस। So, Richa, where can we get these kind of patterns which you showed in the paper? These are all, you can either draw it or you can get it printed from a printer. आप जो भी डिजाइन है आप नेट पे सिलेक्ट करो और उसको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लो A4 शीट पे। मैंने ये घर पे ही प्रिंट किया है। फाइन, दिस इज अ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, इसीलिए ऐसा आया है। अगर आप चाहो तो इसे कलर प्रिंट भी कर सकते हो, पर नो यूज, बिकॉज हमको सिर्फ ट्रेस ही करना है, तो ब्लैक एंड व्हाइट इज परफेक्टली फाइन। ओके ओके, सो वी कैन गेट आइडियाज फ्रॉम गूगल। हम लोग ऐसे पैटर्न गूगल से भी लेके प्रिंट आउट ले सकते हैं या यस फिर यस, खुद से भी एब्सोल्युटली ड्रॉ कर एब्सोल्युटली। सकते हैं। I would recommend drawing with ourselves. In this, we can learn the drawing skill, sketching, and as well as the stitching part as well. राइट राइट राइट। नाउ आई एम जस्ट पिनिंग दिस फ्रॉम ऑल द साइड्स ताकि मेरा कार्बन पेपर एंड द मेन पैटर्न वो हिले नहीं। मैं इन दोनों को पिन लगा दे रही हूँ जिससे कि ये मूव नहीं हो, हिले नहीं अपनी जगह से, और मैं अपने पूरे पैटर्न को ठीक से ट्रेस कर सकूं। So I've pinned these and now I'll just trace it. आप कोई भी पेन ले लीजिए और उसकी मदद से इसके ऊपर ट्रेस कर लीजिए। फाइन, तो मैं इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। आराम से करिए आप, और एक हाथ रखिए इसके ऊपर जिससे कि ये मूव नहीं हो। फाइन, All right. So could you zoom in a bit so that we could see या the details? So इसमें से आप like कोई specific pencil या फिर पेन से ट्रेस कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, इट्स नॉर्मल जेल पेन। Okay, okay. So here we are just tracing it with the gel pen. आपको डिजाइन में भी कुछ चेंज करना है तो यू कैन इजीली चेंज इट। Okay, so we are just outlining those same design which is यस यस, given in the printout. यहाँ पे हम लोग वही सेम डिज़ाइन जो है वो उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, आउटलाइन कर रहे हैं ताकि वो ट्रेस हो जाए इसमें। ओके, और एक हाथ जरूर रखिए जिससे कि वो शिफ्ट नहीं हो, नहीं तो आपका डिजाइन इधर का उधर हो जाएगा। सो योर डिजाइन माइट मूव। well I used to practice this in drawing when I was in kid arts and crafts में classes में ऐसे ही practice करती थी sketching वगैरह। राइट राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। So I would recommend everyone to have a pen and paper so that they could note down all these extra points. तो यहाँ पे आप pen and paper रख लीजिए ताकि आप कुछ extra points लिख पाए। So I just make little and then we'll switch over to doing the stitches. All right. The main thing is you have to face the carbon paper towards the fabric. Fabric की तरफ face करके आपको carbon paper रखना है।
और फिर ऊपर से डिजाइन को ट्रेस करना है। So, Richa, basically, kata over here, like the saris and all these bed sheets, bed covers, and all these are very cheap, like compared to other pattern, because it is very common over here. तो जैसे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत ही कॉमन है, इसीलिए काता मटेरियल जो है एम्ब्रॉयडरी बेडशीट कवर या फिर साड़ी जो भी है थोड़ा चीप है कंपेयर टू अदर स्पेसिफिक जो मटेरियल है। सो आपके एरिया में कितना प्राइस है काता का? नहीं, आई डोंट नो अबाउट, नहीं, like I've been to West Bengal as well a number of times, but I think it's quite expensive depending on what fabric they are using. If you're buying the sari, आपको काथा का अच्छा साड़ी 10,000 के नीचे नहीं मिलता है। Even the bed covers and all, they are like 1,000, 2,000, मतलब 1,000 से start होगा, पर the moment it becomes थोड़ा dense embroidery तो वो 2,000 तक, 2,500, 3,000 ऐसे, depending on what fabric they are using. अच्छा, I mean my mom is a sari seller over here, like she does a business of sarees. So यहाँ पे cheap price में ही sell करती है, more or like from starting from 600 to 1,000, as you mentioned that it totally depends upon the material used. Yeah, that is the main thing. Yes. Depends on the material and on how dense the embroidery is. अगर हल्का फुल्का embroidery होगा तो वो कम price में मिलेगा। जितना घना embroidery होगा, जितना dense embroidery होगी, according to that the prices goes. अच्छा, okay. So the more dense of the embroidery and the designs, the materials are, the price differs for that, right? Okay. Yes, yes, yes. All right. So I have traced this much so that I can do a different stitch here and a different stitch here and show you two different stitches and some chain stitch here and the kafia stitch. So I'll just, and मैं अपनी ये pins निकाल रही हूँ। The design is not that dark, but it's visible for me because हम इसको बहुत dark करेंगे तो ये I'll see if I can show it to you. अगर बहुत dark करेंगे तो ये जब embroidery हो जाएगा तो ये दिख रहा है आपको? Yes, yes, दिखाई दे रहा है। Right? क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा डार्क कार्बन से नहीं ट्रेस करेंगे, नहीं तो उसका जो इंक के मार्क्स हैं वो रह जाते हैं एंड दैट डजंट लुक गुड। सो मेक इट लाइट, बहुत ज्यादा प्रेस करके नहीं करना है उसको, पेन को जस्ट डू इट विथ लाइटर हैंड्स। आप उसको उठा के थोड़ा सा देख भी सकते हो बीच में, अगर उतना आपको विजिबल है तो देन यू कैन कंटिन्यू विथ इट। ठीक है, ठीक है। Now I'll show you all the things that we are going to use. So here are the few things. Okay, so these are the threads. ये एंकर के threads हैं जो इसीलिए अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर आप इस तरह के satin threads भी यूज कर सकते हो, fine. But as a beginner, I would suggest focus on anchor threads, fine. अब जैसे जैसे करना स्टार्ट करोगे, हम जैसे दूसरी एम्ब्रॉयडरीज पे आएंगे तो हम आपको उसमें ये भी यूज करके दिखाएंगे, the satin threads, fine. तो ये जो एंकर थ्रेड्स हैं इसमें भी बहुत क्वालिटीज आती हैं। एक ये देख सकते हो आप, इस पे एंकर बना हुआ है, इज इट विजिबल? यस यस, राइट। तो ये ही थ्रेड लेना है आपको, डोंट बाय दीज। ये जैसे अदर ब्रांड्स आर देयर लाइक निर्मा एंड देन RNG. Even if the shopkeeper says that these are very good, मैम आप ले जाइए, बल्कि 2 रुपए 3 रुपए कम है एंकर से, but don't buy these.
फाइन, दिस आई जस्ट केप्ट टू शो यू सो दैट मैं आपको डिफरेंस बता सकूं। फाइन, ये जो ब्लैक कवर के साथ है और उसमें एंकर लिखा है, जस्ट बाय दोज, क्योंकि इसके जो कलर है दैट इज ब्लीड नहीं होगा, मतलब इसके कलर धुलने पे निकलेंगे नहीं। फाइन, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके जब अपने वर्क को बनाओगे तो 2-3 रुपए के लिए आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा, क्योंकि इसका कलर कभी नहीं निकलता है। कोई भी कलर ले लो आप इसका, लाइक फिरोजी, ग्रीन, एंड इट्स अवेलेबल इन ऑल कलर्स, येलो, pink, magenta, red, you name it and they have the colors, all the shades as well. Fine, तो ये ही लेने हैं आपको। आपको सिर्फ एंकर थ्रेड्स ही यूज करना है, क्योंकि ये वाले थ्रेड्स के कलर निकल जाते हैं। These ones they bleed colors, तो जब ये धुलता है तो ब्लू का धागा का कलर कहीं लगा होगा, रेड का कहीं लगा होगा, तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो उससे बेटर है टू बी ऑन द सेफर साइड, यूज एंकर थ्रेड्स। फाइन, and then we'll be using this. I already gave it in PDF, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। ये एम्ब्रॉयडरी लूप है, इसको एम्ब्रॉयडरी फ्रेम भी बोलते हैं, and this is used to do all hand embroideries, all type of embroideries that we'll be doing in the embroidery session. We'll be using these frames. और ये जैसे ये लकड़ी का है तो ये लकड़ी में भी मिलते हैं, then प्लास्टिक में भी मिलते हैं, और लाइक आयरन में भी मिलते हैं। पर आयरन वाला बिल्कुल मत लीजिए, उसमें जंग लग जाता है और फिर वो जंग आपके कपड़े पे चला जाएगा। प्लास्टिक वंस आर ओके, इसमें से भी जब आप फैब्रिक टाइट करते हो तो थोड़ा स्लिप होता है, बट इफ द वुडन वंस आर नॉट अवेलेबल, गो फॉर प्लास्टिक, दे आर आल्सो गुड इनफ, राइट? एंड द बेस्ट वंस आर वुड वंस, इवन आई यूज इट फॉर माय फैब्रिक पेंटिंग एंड अदर स्टफ। सो ये जो फ्रेम्स हैं ये इजीली अवेलेबल है, 25 रुपीज से स्टार्ट होता है इसका एक फ्रेम, एंड इट गोज अप टू डिपेंडिंग ऑन व्हाट साइज यू आर वांटिंग। फाइन, तो इसको हम देखते हैं कि अब फ्रेम इसमें कैसे फिट करेंगे। इसके अलावा हमको इसमें चाहिए है एक रिपर रखेंगे हम हमारा थ्रेड कट करने के लिए, और एक कटर रखेंगे। फाइन, so that हम इजीली कट कर सके, बड़ी बड़ी सीजर्स के कंपैरिजन में वो ज्यादा इजी रहता है। और नीडल्स, so these are the embroidery needles, हमको फाइन नीडल लेनी है और थोड़ा सा आई जिसका बड़ा हो। फाइन, तो इस तरह की नीडल हम ले लेंगे, आप यहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ ले कर रही हूँ जिसको आप ध्यान से देख पाओगे। तो these are the needles that we'll be using, नॉर्मल नीडल्स हैं, बट बहुत मोटी वाली मत लीजिए, जैसे ये बहुत मोटी है तो I'm not going to use this, हम ये वाली नहीं यूज करेंगे। आपको थोड़ी फाइन नीडल लेनी है, थोड़ी लंबी हो और जिसका आई थोड़ा सा बड़ा हो। मैंने पीडीएफ में मेंशन किया है जहाँ पे टूल्स हैं कि हमको कौन सी नीडल्स यूज करनी है। फाइन, इस तरह से भी आती है इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग, एक बड़ा सा उसमें स्ट्रिप में, एंड यू इवन गेट इट लाइक दिस, असॉर्टेड नीडल्स के जैसे। ऐसा मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो यू कैन यूज दीज, and I'll just show you how to put the thread on. All, just give me 2 minutes. All right. So guys, for now you can just go ahead with the process, focusing on the process. यहाँ पे जो भी फोकस करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी हमारे साथ बनाना चाहते हैं प्लीज़ अपना कैमरा इनेबल कीजिए, ताकि यहाँ पे रिचा आपको हेल्प कर पाए रिव्यू करके। So if anybody who is teaching it with us, please enable your camera so that Richa could help you with reviewing it as well. So मैं यहाँ पे ये रेड थ्रेड यूज कर रही हूँ, और काथा एम्ब्रॉयडरी या तो बहुत सटल होती है या बहुत ब्राइट होती है, तो आप ब्राइट कलर के थ्रेड्स यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग दिस ब्लू फिरोजी थ्रेड एंड सम ग्रीन, this will not show, so I'll take some other green. फाइन, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका धागा कैसे निकालते हैं। फाइन, तो आप इस तरह से इसको ये ले लीजिए, इसको ऐसे आप पुल करोगे तो ये इजीली थ्रेड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, ये देख रहे हो आप किस तरह से निकल रहा है। तो जस्ट जब भी आप नीडल वर्क कर रहे हो तो मेक श्योर आप ऐसे
दो, अपने हाथ के 2 मेजरमेंट के थ्रेड ले दो, ठीक है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि 2 को जब हम ऐसे डबल कर लेंगे तो इट विल बी लाइक दिस डिस्टेंस। आपको अपने हैंड की विड्थ का डिस्टेंस का थ्रेड लेना है, ताकि जब भी आप स्टिच कर रहे हो आप साइड वाले की आंख को पोक नहीं कर दो, आप साइड वाले की आंख में सुई नहीं चुबा दो, उसकी वजह से हम सिर्फ एक हैंड डिस्टेंस का थ्रेड लेते हैं। फाइन, सो आई एम टेकिंग दिस मच। अब इसमें जो हम थ्रेड यूज कर रहे हैं, ये मैं 4 स्ट्रैंड्स यूज कर रही हूँ। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंकर के थ्रेड में 6 धागे की लेयर्स होती हैं। फाइन, आई मोहिती, इज इट विजिबल? Yes, yes, it is visible. तो इस तरह के 6 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें और 4 zoom ले, कीजिए प्लीज, सॉरी, थोड़ा सा और zoom in कीजिए प्लीज। Yes, perfect. यू कैन कीप इट हियर, तो पूरा इधर दिखेगा, करके तो देखो, 1 मिनट, ताकि इजी हो, छोटे कर दो उसके पे। All right, so we have Gina ma'am who is stitching with us, which is amazing. यहाँ पे That's जीना very मैम nice. हमारे साथ स्टिच कर रहे हैं। If you have any problems at any point, just feel free to ask. We'll try to help you out. Yes, yes, of course. तो आप इस तरह से इसके 6 strands में से 4 strands ले लो, because 4 is like good enough. ऐसे पुल करके इसमें से 2 strands निकल गए, and I have left with the 4 strands. Fine. तो अब मैं इसको नीडल में डालूंगी। नीडल में भी डालने में अगर किसी की आईसाइट वीक है या कुछ, एंड इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, तो आप इस तरह का ये ले सकते हो, इसको थ्रेडर बोलते हैं। फाइन, सो थ्रेडर को बस आप नीडल के अंदर डालो, इसमें ये वायर होती है, तो इसको नीडल के अंदर डालिए। फाइन, अब हम अपने धागे को इसमें डाल देंगे। ये जो हमारे 4 लेयर्स हैं थ्रेड के, इसको इसमें डालेंगे। फाइन, और इसको ऐसे छोड़ दीजिए, और अब हम नीडल को पकड़ के थ्रेडर को इस साइड पुल कर लेंगे। धीरे से करिए क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है। तो ये देखो, आप आपका धागा डल गया है। फाइन, Okay, so could you show that process again by zooming Yeah. in, please? I'll show it another needle so that I'll put a और red थोड़ा thread सा as well. zoom in कीजिए राइट साइड में। Yes, perfect. थ्रेडर से आप इसके नीडल के होल में ये जो इसके आगे का वायर है उसको डालिए। जस्ट पुट द वायर इनसाइड इट। आई होप इट्स विजिबल। Yes, yes, now it's visible. Right? Now I'll put the thread inside this hole. ये जो हमारे रिपर का वायर है उसमें डाला है, and I'll hold the needle and pull this out. जो हमने वायर नीडल के होल में डाला था उसको मैं बाहर की तरफ निकाल दी। ये इजीली निकल जाता है। इस वक्त अभी जो मेरे पास नीडल है उसका होल बहुत छोटा है, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई कुडंट गेट द बिगर होल वाला नीडल, बट ये इजीली इट कम्स आउट। I have already ordered on Amazon. Hopefully they are going to deliver it to me tomorrow. So कल मैं hopefully आपको दिखा पाऊंगी next class में। Okay, okay. So next class में हम लोग बड़े needle से दिखाने वाले हैं. We are going to show the big needle stitching.
और जिन लोगों की आई साइट इज फाइन और फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप थ्रेडर यूज कर सकते हो, नहीं तो यू कैन यूज पुट इट इन द नीडल लाइक दैट ऑल्सो. सो बाइंग अ थ्रेडर इज नॉट अ कंपल्शन. अब हम देखते हैं कि हमको इसको फ्रेम को कैसे फिट करना है इसमें. आप ये जो इसके दो पार्ट्स रहते हैं, एक में ये स्क्रू है और एक में ये है. फाइन. तो हम इस तरह से इसको फिट करेंगे. आई यूज अ स्मॉलर वन टुडे. इसको इस तरह से रखिए आप और इस स्क्रू को इसमें डाल दीजिए ऊपर के फ्रेम के कवर को, और ये स्क्रू को थोड़ा सा टाइट कर दीजिए. फाइन. इसको टाइट करने के बाद अभी आप देखो कि मेरा जो ये फैब्रिक है इट्स वेरी लूज. फाइन. हम इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, नहीं तो हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो लूज आएगी. इसको अच्छे से टाइट करने के बाद आप इसमें अगर इस तरह से इसका साइन ही होता है. कैन यू हियर द साउंड? यस यस. अगर इस तरह का साउंड आ रहा है और आपका जो फैब्रिक है वो बाउंस बैक कर रहा है इमीडिएटली, अंदर दब नहीं रहा, मीन्स योर फ्रेम इज रेडी. I'm just taking my thread and I'll do the first stitch, that is the running stitch. Fine. तो मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगी. नीचे से मैंने फैब्रिक में अपना नीडल डाल के ऊपर निकाल लिया है. अब हम इसमें एक डैश बनाएंगे, मतलब नीडल अंदर डालेंगे और बाहर निकालेंगे, फिर अंदर डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे. इस तरह से हम इसमें रनिंग स्टिच करेंगे. ये कौन सी स्टिच होगी हमारी? रनिंग स्टिच. So could you explain about the tightness, I mean the fitting of this basket with in English, please? The frame? Yes, yes, with the frame. Okay. First we'll put, see, like this frame is there. So this screw part is on one piece and one piece doesn't have any screw part. So I'll just put it like this. And I'll put the screw part on top. This is the underneath one and this is the top one. And I'll place the fabric in between and I'll just press this. Fine. At the moment, if I'll try to do this, it's not making any sound. Fine. और मेरा fabric भी यहाँ से दब रहा है. My fabric is also pressing down. So I'll just pull it from all the sides. I'll just pull my fabric from all the sides of the frame. And if it is loose, I'll tighten up my screw and now I'll see. See, this sound should come. That means your frame is ready and tight enough for you to work. All right. अब हम इस पे रनिंग स्टिच कर रहे हैं. तो रनिंग स्टिच के लिए मैंने आपको दिखाया, जस्ट नीडल अंदर डालेंगे और बाहर निकालेंगे एंड मेक श्योर कि आपके स्टिचेस का साइज सेम हो. So you have to be very careful that your stitches size has to be same so that it looks good. Okay. So could you zoom in a bit more and Yeah. Keep it near you? थोड़ा सा आपके पास रखेंगे क्या? Frame को. This is better? Yes, yes. The previous one better actually. This is better? Yes, okay. Yes, yes, yes. Okay. See, the stitches sizes are all equal. So you have to make sure कि sizes सारे stitches के equal आए. Fine. So I'm just following the tracing. मैं अपनी tracing के जैसे उसके ऊपर मैं बस running stitch कर रही हूँ. Fine. This is normal running stitch. ये मेरी रनिंग स्टिच यहाँ कंप्लीट हुई है. अगर आप इसको बहुत ज्यादा कलरफुल बनाना चाहते हो तो इसकी जो लाइंस है आप हर एक डिफरेंट कलर की कर सकते हो. लाइक एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक ऑरेंज, येलो, ऑल, बिकॉज काथा एम्ब्रॉयडरी इज वेरी कलरफुल. लाइक इट डिपेंड्स कि किस ओकेजन पे पा रहे हो. इफ इट इज अ हैप्पी ओकेजन
then it will be very colorful. If you are wearing it for some mourning purpose, like किसी के दुख में अगर आप जा रहे हो, तो it will be very subtle and pastel colors and subdued colors, like black पे hardly browns और सिर्फ off whites हैं, rather than red and orange, and so that it doesn't become very bright, ताकि उस तरह से वो बहुत bright नहीं हो जाए, इसलिए बहुत मिलते जुलते कलर्स उसके ऊपर रहते हैं, ब्लैक से, जो बहुत ज्यादा ब्राइट ना लगे। तो मतलब हर एज ग्रुप के लोग काथा पहनते हैं, लाइक बड़े बुजुर्ग से लेके बच्चों तक, इवन छोटे बच्चों के लिए जो हम चादरें यूज करते हैं जब वो न्यूबॉर्न होते हैं, तो वो चादरें भी काथा से ही बनती हैं। सो ये रनिंग स्टिच हो गई है। आई विल नॉट शो यू द एंटायर थिंग, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगी क्लास। नाउ आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टिच एंड दैट इज द लेजी डेजी। सो ये देखिए पीछे से भी बहुत नीट आता है, एंड आई जस्ट finish off my stitch here. I'll just put a knot. Fine. इसमें आप ये धागे के नीचे से ले जाइए और फिर इस लूप के अंदर से ले लीजिए, तो एक knot बन जाएगी। If I want, I'll just cut off this thread because in the next one I might use another color. अब हम इसमें जो लेजी डेजी के हमारे फ्लावर्स थे, ये वाले हम ये बनाएंगे। फाइन, मैं इनको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको भी दिखे कि वो फ्लावर्स कहाँ हैं। ऋचा थोड़ा सा आपके राइट में, आई एम सॉरी, आपके, हाँ ये सही है। Yes. I just put a red thread, just give me 2 minutes. All right, so we have Priyanka over here who is doing the stitching with us. यहाँ पे प्रियंका भी हैं जो हमारे साथ स्टिच कर रहे हैं। That's really nice. So for those who are making with us, I mean stitching with us, please let us know if you have any query. अगर जो भी हमारे साथ स्टिच कर रहे हैं कोई भी क्वेरी है आपको करने में कोई मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो हम लोगों को ज़रूर बता दीजिएगा। You can just have your camera enabled and raise your hand. जो भी हमारे साथ बना रहे हैं प्लीज़ अपना कैमरा इनेबल करके हैंड रेज कर सकते हैं अगर क्वेरी है तो। Yes, we have Ritika over here. Yes, Ritika, could you show the stitching which you have done? All right, so Richa, is it visible for you? Just a minute, I'll just move around and have a look. Yes, yes. All right. Yes, Ritika. Nice, nice, perfectly fine. सिर्फ आपकी स्टिचेस का जो डिस्टेंस है ना, लाइक विड्थ, वो सबकी सेम रखिए, थोड़ी बड़ी छोटी हो रही है क्योंकि काथा की लाइक ब्यूटी ही यही है कि वो स्टिचेस की लेंथ इवन आनी चाहिए। फाइन, अमेजिंग, रियली नाइस वर्क, वेरी नाइस। Do we have anybody else also who's doing with us? Yes, we have Priyanka ma'am here. I'll just replace the spotlight. Wow, Priyanka, amazing, बहुत सुंदर, आपका तो फैब्रिक कलर भी मेरे साथ मैचिंग हो रहा है। Amazing, बढ़िया बढ़िया। Okay, we have Shruti over here as well. Oh wow. Nice, excellent, बहुत सुंदर बन रहा है सबका, very nice. And Prachi ma'am is doing it with us as well. बढ़िया बढ़िया। So let's move ahead. Yes. And I'll show you the lazy daisy stitch. All right. So just have a look. ये मैंने फ्लावर के बीच में से लिया है, इसकी अब हम लीव्स बनाएंगे। फाइन, सो इसको हम इस तरह से रखेंगे ऊपर की तरफ एक लूप के जैसे,
और नीडल को इसके सेंटर से निकाल के टिप पे ले जाएंगे, फाइन। और इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, तो इट विल बिकम लाइक अ पेटल एंड दिस स्टिच इज कॉल्ड लेजी डेजी। ये जो पेटल एक बार में बन जाती है, स्टिच को हम लेजी डेजी बुलाते हैं। All right, could you explain this in English as well, please? Yeah. So I'm just taking out the needle on one tip of the leaf and I'll take it out on the other tip, holding my thread with my other hand's thumb. So just I'm holding it like this. Now I'll take my needle from the tip where my thread is and bring my needle on top of the leaf. Fine. And then just pull my needle out to make a loop and put it back so that it holds the loop in place. And this is called a lazy daisy stitch. Fine. I hope it's visible for everyone. Yes, yes. We'll just complete one flower. All right, तो यहाँ पे हम लोग एक फ्लावर कंप्लीट करेंगे. I think yellow will be more visible, so I'm taking yellow color. So just try this. The people who are doing it with us, just try this stitch. By the time I'm just putting some thread in my needle. यस यस, तो यहाँ पे जो भी हमारे साथ स्टिच कर रहे हैं, प्लीज़ ये मेथड ट्राई कीजिएगा, लेज़ी डेज़ी वाला स्टिच, ताकि हम लोग यहाँ पे देख पाए और आपको बता पाए कि कैसे आपने किया है. You can try out the lazy daisy stitch, guys, so that we could let you know that how did you do over here by Richa reviewing your stitches. Okay. And then you can show it to us so that I can have a look how it's coming up. ठीक है. So is lazy daisy stitch like a chain design or something? Yes, yes, yes. I told you in the beginning, lazy daisy is a variation of chain stitch itself. ये chain stitch के जैसी ही होती है. All right, and could you show the process again? क्या आप फिर से explain कर सकते Yes, हैं yes. इसको? आप देखिए इसको. Let me finish this flower. I'll start the other one and I'll show you. Yes, तो हम लोग यहाँ पे फिर से repeat करेंगे process को. ये देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया लीफ के एज से. इसको ऐसे थंब से पकड़ लीजिए ताकि एक लूप बन जाए और ये लूप के अंदर से ही हमको निकालना है. फाइन. तो ये देखिए इसकी लीफ रेडी है और लीफ रेडी होने के बाद हम इस नीडल को बाहर की तरफ टक कर देंगे ताकि हमारा वो लूप जो है सिक्योर हो जाए. फाइन. एंड इट बिकम्स अ लीफ डिजाइन. ये देखिए मैं एक और बना रही हूँ. All right, so I hope this process is clear for everyone. Okay, so I guess Prachi ma'am has a query. Let me just replace the spotlight. Yes, Yes, Prachi. प्राची. You can unmute yourself, ma'am. सॉरी. आपने जो वो जो धागा लिया है उसके लेयर्स कितने लिए? 4 layers. कितना? 4 लेयर्स. यस. और लाइंस के लिए पूरा लिया है क्या 6 लेयर्स का? किसमें? लाइंस के लिए नहीं, सब में मैंने 4 ही लिया है. आप 4 नहीं तो 6 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि Okay. जितना ज्यादा दिखेगी एम्ब्रॉयडरी उतना सुंदर दिखेगा. तो आप 4 या 6 कोई भी ले सकते हो. थैंक यू. ये देखो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज जस्ट 4 layers. आई होप इट्स विजिबल.
यहाँ पे अगर आप ये थ्रेड्स काउंट कर सको इस जगह पे. Okay, it's not much visible actually. Wait. I'll just scatter them and show. Oh wow, प्रियंका मैम ने तो ऑलरेडी बना लिया है यहाँ पे. This looks amazing. Yes, nice. थोड़े से लीव्स को छोटा रखिए साइज में, बिकॉज लेजी डेजी जितनी छोटी होगी ना वो उतनी सुंदर दिखती है. जितना हम बड़ा बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन की जैसी दिखने लगती है. All right. Yes. Right? Yes. Perfectly fine. Okay. So now let's move ahead with the next stitch, and that is the bharwa stitch or the herringbone stitch. So let's see how to do that. I'll show you on a leaf. Okay, so we have Jyoti ma'am who has completed the stitch as well. Could you zoom in a bit, Jyoti ma'am? क्या आप थोड़ा सा कैमरा के सामने लाएंगे? Nice, very nice and very neat. बहुत सुंदर बन रहा है. Yes. आप सब लोग का बहुत अच्छा बन रहा है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए. You'll be able to make nice things. And this would be Subhanshini's ma'am. Yeah, nice, very nice. बढ़िया. Yes. So I'm just making my pattern little darker so that you can see. ओके, जो ट्रेसिंग किया है उसके ऊपर ही हम लोग डार्कर आउटलाइन कर रहे हैं, राइट? Yes, ताकि वो दिख सके आप लोग को कैमरा में. Okay, so we have just outlined the tracing which we have done. All the entire embroidery I'm doing it with 4 strands. You can even do it with 6. That also looks good. अब आप देखिए कि इसको कैसे करेंगे. This is a herringbone stitch. तो इसको हम यहाँ सेंटर से ले रहे हैं. Fine. और यहाँ निकाल रहे हैं. मैं आपको एक करके दिखाती हूँ. Then I'll show you in step by step process. ताकि आपको समझ में आए कि ये स्टिच कैसी है. इसको हैरिंग बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिश के जो कांटा होता है वाई की शेप का उसकी जैसी होती है, इसीलिए उसको बोन वर्ड यूज किया है इसमें, हेरिंग बोन, बिकॉज इट इज लाइक मछली के कांटे के जैसा. All right, so could you repeat this process in English as well, please? या इस जो स्टिच को हमने नाम दिया है, लाइक जो इसका नाम है दैट इज हैरिंग बोन. बोन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये फिश के कांटे की जैसी होती है. There is another stitch that is called fish bone. That is actually like a Y-shaped fish kata. So और बंगाल में तो आप लोग को मालूम है मछली और भात and all is very famous. So वहीं से ये इसका नाम आया है, herring bone and fish bone. So अब ये मैंने आपको एक बना के दिखाया है. अब now I'll show you step by step how to do this stitch. Fine. So just have a look. I'm starting from one edge of my leaf. I've taken out my thread and I'm coming to the next side. दूसरी तरफ मैं लीफ के निकाल रही हूँ इसको और ऊपर की तरफ. Just have a look. Yes. और इसको मैंने ऐसे पुल कर लिया है. तो इट्स मेकिंग अ डायगोनल लाइन. एक तिरछी लाइन बन रही है. अब मैं दूसरे वाली को लाऊंगी तो इस तरफ तिरछी लाइन बनेगी. तो इस तरह क्रिस क्रॉस होएगा. तो ये इधर आई है तो अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ गई और ऊपर की तरफ मैंने निकाल लिया. वैसे ही इस तरफ नीचे की तरफ गई और ऊपर की तरफ निकाल लिया. So I'm just going below and taking out upwards. Richa, could you just keep it like near you so that it's visible? Sure. Yes. Now it is fine. So I'm just poking it downwards and taking my needle out upwards. Fine, like this.
and do it close by close so that it gives a filling effect of a leaf. Fine. इसीलिए इसको भरवा स्टिच बोलते हैं because it fills the entire design of yours. I hope this stitch is clear. Yes, yes. So shall we move to the other one or shall I show you this one once again? It would be great if you could show us once again. Okay. My thread is almost finishing. So I'll just take it on one end and I'll put it on the other end and take it upwards. मैं ऊपर की तरफ निकालूंगी धागे को, नीडल नीचे की तरफ डालेंगे और धागा ऊपर निकालेंगे. फाइन. एंड जब इस साइड आएंगे अगेन नीडल नीचे की तरफ और जो नीडल को बाहर निकाल रहे हैं वो ऊपर की तरफ. तो इट विल मेक अ क्रिस क्रॉस डिजाइन. Fine. And it will be like this from behind. Fine. So I'm just finishing my thread here. So it's like this. So this is this design we are making, this crisscross design. If you see it from close, you'll be able to make out. It's a crisscross filling design and it's called herringbone. And this one was lazy daisy that we did, and this is the kantha work. Fine. Now one stitch is left and that is satin stitch. Fine. So that I'll be showing you on another leaf. So could you recommend us any tip for color combinations? क्या आप कोई tip दे सकते हैं color combination के लिए? Color combination के लिए मैं आपको वही बता रही हूँ. Whenever you want to decide what color you want to take, आपको कौन से कलर्स यूज करने हैं आपकी एम्ब्रॉयडरी में, तो आप सबसे पहले अपने फैब्रिक को चूज करो कि आपका फैब्रिक कलर कौन सा है. फाइन. एंड देन प्लेस द थ्रेड्स ऑन टॉप ऑफ इट लाइक दिस. फाइन. जस्ट प्लेस योर थ्रेड्स ऐसे आप रख लो और फिर इस तरह से आप अपने जो भी कलर के आपके थ्रेड्स आपके पास हैं या आप चाह रहे हो उसको लेना, आप उस तरह से ये थ्रेड्स को इसके ऊपर रखो. एंड नाउ सी दैट विच थ्रेड इज लुकिंग गुड ऑन योर वर्क, जो ब्राइट भी रहे, आपके जो सराउंडिंग है उस पे भी मैच करे. लाइक अगर आपके लिविंग रूम में कर्टन्स हैं तो उसके साथ भी थोड़ा सा मैचिंग हो जाए, एकदम बहुत अलग सा नहीं दिखे. तो अकॉर्डिंग टू ऑल दैट यू कैन डिसाइड व्हाट कलर्स यू वांट टू टेक. आप अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली आपके आसपास में किस तरह के कर्टन्स हैं, किस तरह का टेबल कवर है जिसके ऊपर आप ये रनर बिछाने वाले हो, तो वो सब चीजों को, आपकी फर्नीचर के कलर्स क्या है, लाइक डार्क ब्राउन है या वुडन है या फिर लेदर के सोफाज हैं एंड ऑल, तो उसके ऊपर डिजाइन, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने थ्रेड्स के कलर्स चूज करोगे. फाइन. ठीक है, ठीक है. Okay, so we have Priyanka over here who has completed her stitching here. I'll just have a look. Yes. Yes, nice. Priyanka, you didn't do the herring. Yeah. Nice. Very nice. And we have Prachi ma'am here. Yeah, very nice. Prachi, beautiful. इसका डिटेल से बहुत ही बढ़िया है. बहुत सुंदर बना है. And Ritika ma'am. Yes. See, everybody is able to do the herringbone stitch. Yes, absolutely. Beautiful. And Amazing. बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर. Galaxy J6. Yes, बहुत ही बढ़िया बनाया मैम. बहुत सुंदर. Excellent. Okay. Yes, Jyoti ma'am. Yes, amazing. That's why I wanted कि आप लोग साथ साथ में बनाते तो आप लोग को और क्लियर होता. Very nice. Amazing. Whose is this? Subhanshini ma'am. Yeah. Subhanshi, very nice. It's coming out beautiful. बहुत सुंदर लग रहा है green पे white. Yes. Amazing. ठीक है. Yes. चलिए प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं. Yes. So अब हम satin stitch देख लेते हैं कि satin stitch कैसे करते हैं. So I'm using blue color क्योंकि already मेरा needle में blue डला हुआ है.
So without wasting time, I'll just show you how to do the satin stitch. Fine. मैं आपको अभी कांथा का एक स्टिच और बताऊंगी और सैटिन स्टिच. फाइन. ठीक है. तो ये जो सेंटर है हम इसको सैटिन स्टिच से फिल कर रहे हैं. तो अगर हमको सैटिन स्टिच से फिल करना होता है तो हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं. फाइन. ये हमने एक कॉर्नर से स्टार्ट किया और इसमें लॉन्ग लॉन्ग लाइंस बस हमको बनानी है और फिर ऊपर निकाल दिया उसी के साइड में. तो दिस इज कॉल्ड सैटिन स्टिच या भरवा स्टिच. और धागा आप अपना बहुत लूज मत छोड़िएगा, उसको थोड़ा टाइट करते रहिए बीच बीच में, सो दैट फिनिशिंग प्रॉपर आए उसकी. सो क्या आप थोड़ा सा क्लोज इन करके दिखा सकते हैं? ऑल राइट. फाइन. यस यस. इसमें बस स्ट्रेट लाइंस ही हमको बनानी है, नथिंग मच. So Richa, could you let us know some common mistakes which we can make during the stitching part we can avoid? क्या आप हमें कुछ टिप्स दे सकते हैं जहाँ पे कुछ मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं? Yeah, I'll just come to it. Like this is the satin stitch and it looks the same from the other side as well. Fine. ठीक है. तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम काथा वर्क करते हैं तो सैटिन स्टिच जैसे कंप्लीट हुई तो हमको एक आउटलाइन भी दे देनी है काथा की, बिकॉज काथा स्टिच हैज टू बी द प्रोमिनेंट वन हियर. सो हम यहाँ पे एक छोटी सी रनिंग स्टिच कर देंगे ऑल अराउंड दिस राउंड पार्ट ऑफ आवर फ्लावर. फाइन. तो उससे इसका एक लुक और अच्छा आ जाता है. जैसे अभी मैं ब्लू से ही कर रही हूँ, यू कैन इवन गिव अ कॉन्ट्रास्ट कलर, तो वो और सुंदर दिखता है. सेम साइज की स्टिचेस आप लेते जाओ एंड गिव अ बाउंड्री और अ बॉर्डर टू दैट round part of your flower, the center part of your flower. And you can change the color of your thread. और इसको आराम से पेशेंस से बैठ के बनाइए, बहुत सुंदर बनेगा. And I would say stitching is very much like a meditation. Stitching basically एक meditation जैसा है. And इस time में आप अगर stitching वगैरह करेंगे तो आपका mind एकदम it will be really calm, to be honest. Yes, बहुत ही yes. ठंडा दिमाग से stitching करेंगे, एकदम meditation जैसा लगेगा आपको. बहुत ही relaxing है, to be honest. बहुत रिलैक्सिंग और बहुत लाइक इट रिलीजेस स्ट्रेस. और जब नए नए डिजाइन आप अपने हाथ से बनाते हो तो इट्स एक अलग ही खुशी मिलती है. Absolutely. और दूसरों के लिए बनाते हो तो और भी एक ज्यादा एक्स्ट्रा खुशी मिलती है. हाँ, that means you want everybody to make and send you. That is so true. That's a good idea actually. Yes, yes, absolutely. नहीं, when people encourage you and just praise you that you've made a very good thing, आपको एक अलग सी खुशी मिलती है. Exactly. ये तो सही बात है कि आप खुद से बना के दूसरों को दे रहे हो और वो एक्चुअली बहुत ही खुश है कि आपने ये बनाया है एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग का, तो और भी खुश होते हैं. एंड दिस इज That's true, very वेरी true. लाइक फेमस फॉर गिफ्ट्स, एनी काइंड ऑफ गिफ्ट्स. आप
गिफ्ट दे सकते हैं, बाहर से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद बना के दे सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। आप छोटे छोटे मोटिव्स लाइक बना के हैंडkerchiefs में भी बना सकते हो, मास्क पे बना सकते हो, बिकॉज दीज डेज तो एवरीबडी हैज टू वेयर अ मास्क। तो आप जैसे हमारी स्टिचिंग क्लासेस होती हैं वो ज्वाइन करके आप मास्क स्टिच करना, बाकी चीजें स्टिच करना भी सीख सकते हो, साथ में आप एम्ब्रॉयडरी क्लास से सीखो। तो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स। Yes. Oh my God. So we have Nicola ma'am here, who Yeah, has completed a rose. just let me have a look. I don't have any words. This is amazing. एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बना है। मतलब आप तो प्रोफेशनल निकले निकला मैम, बहुत ही खूबसूरत लगी, अमेजिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सो दिस लिटरली, ओ वाव, यहाँ पे तो और भी एम्ब्रॉयडरी पीसेस बनाए हैं। इट्स एन एलिफेंट, वाव, एलिफेंट यस बनाया यस, है, वेरी नाइस, अमेजिंग। और बहुत सुंदर बना है। यस, मोर सो वी हैव, yes, we have Galaxy J6. यस, Yes, वेरी ma'am. नाइस, And then we have Jyoti ma'am. यस, बहुत सुंदर बना है आप लोग का, प्राची मैम ने भी यहाँ पे बनाया है। बहुत अच्छा बना रहे हो। या ब्यूटीफुल, यही मैं बोल रही थी, कॉन्ट्रास्ट कलर के थ्रेड से उसकी आउटलाइन करिए तो वो बहुत सुंदर दिखता है। फाइन, And this one is amazing. वेरी प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत। Yes. ये आपने पहले से बनाया हुआ था, बहुत सुंदर बना है, वेरी नाइस, और बहुत नीट वर्क है आपका। Amazing. And we have Priyanka ma'am. यस प्रियंका, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बन रहा है आप लोग का सबका। Yes, So let's move ahead with the next stitch. let's go ahead. And the next stitch is like the katha stitch only, but I'll just show you how we can just fill it. How to use, this is the katha stitch. So how we are going to use this stitch for filling. So I've taken a magenta color thread and now I'll show you how to fill this. इसको जब हम fill करते हैं तो हम सबसे पहले इसकी एक outline बना लेते हैं, fine? So I'm just making a outline with a running stitch, that is the katha stitch. तो आप इस तरह से इसकी एक आउटलाइन या बाउंड्री बना लीजिए। ओके, थोड़ा सा जूम इन कीजिए प्लीज। इस तरह से पूरा इसका एक आउटलाइन बना लो। ये इसका आउटलाइन हो गया। अब आप चाहो तो इसको और किसी थ्रेड से भी फिल कर सकते हो, और यू कैन फिल इट विद द सेम थ्रेड। अब टेक्निक देखो कि किस तरह से फिल करते हैं इसको। So Richa, can the border be made with a different color to differentiate if possible? Yes, I'll make it with blue, the inside one, so that it's clearer in the camera. All right. So now you can have a look. मैं सबसे पहले इसको फिल करने के लिए इसके सेंटर में एक लाइन बनाऊंगी, फाइन।
ठीक है, मैंने इसके सेंटर में एक रनिंग स्टिच किया, लाइक द काथा स्टिच, यू कैन से सो। फाइन। अब हम इसके साइड्स में फिल करेंगे। हमेशा सेंटर से स्टार्ट करेंगे इसको, अगर हम फिल कर रहे हैं तो सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तो वी विल फिनिश वन साइड एंड देन विल गो टू द अदर साइड ऑफ द लीफ। आधा हम पहले फिल करेंगे, फिर आधा फिल करेंगे। और इसको आप चाहो तो और कलरफुल दिखाने के लिए हाफ लीफ अलग कलर से फिल कर लो और हाफ लीफ अलग कलर से, दैट लुक्स गुड एज वेल। ऑलराइट, दिस लुक्स रियली यूनिक, ये बहुत ही यूनिक दिख रही है। तो आप इस तरह से इसका ये वाला साइड पूरा फिनिश कर लो, जैसे इट्स ऑलमोस्ट डन। सो इस वुडन फ्रेम का साइज क्या है? व्हाट वुड बी द वुडन फ्रेम साइज? दिस वन इज, आई मेजर एंड शो यू। Which one I have to insert? ये जैसे हमने इस साइड का कंप्लीट कर लिया, अब हम इस वाले साइड को पिंक कर देते हैं। फाइन, सो आई शो यू कैसे करना है इसको। हाफ कंप्लीट करने के बाद आप हाफ स्टार्ट करो दूसरी साइड। And then fill this side as well. So we have a query from an audience. So when I'm separating the threads, 4 out of 6 it's getting knotted. Okay, I'll show you how to separate them in a neat manner. All right. Fine, so this is how you'll fill it. Okay. You can have a look here. See, this is the filling stitch. So they have started from the center, then they did this part, and then they did this part. So this is the filling stitch. Fine, same filling stitch they have used in many places. Even अगर आपको एक लाइन में भी पास पास स्टिचिंग करनी है काथा की, तो that will be also go in rows. Fine. Okay. This is the herringbone that they have used. So you can have a look. And this is the filling stitch. All right. Clear? So they have made flowers here as well with herringbone and the filling stitch. So these are the main stitches that they normally use. Can you see the lazy daisy they have made here with leaves and some satin heart-shaped flowers? So these are all, this is all katha. You can see the katha stitch here, the filling stitch, and the lazy daisy. So these are the main stitches that cover in a katha. Okay, so now I'll just quickly show you how to separate the threads. ये देखिए मैंने थ्रेड लिया है। फाइन, अब आप इसको इस तरह से इसके जितने भी थ्रेड्स आपको रखने हैं उतने रख के, जैसे ये 4 थ्रेड्स हैं तो मैं 2 सेपरेट कर रही हूँ, तो आप इस तरह से करिए इसको, तो ये ऐसे यहाँ पे टाइट होने लगेगा। फाइन, तो आप इस थ्रेड को इस तरह से पुल करते जाइए नीचे की तरफ, एंड इफ यू हैव समबडी विथ यू जस्ट आस्क देम टू होल्ड इट फ्रॉम अदर साइड, तो ये इजीली निकल जाएगा। इसको ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच करते जाइए जो बचा हुआ धागा है, और इसको पुल करते जाइए। देखिए अब यहाँ पे फंस गया है। फाइन, so you'll just pull this part and it will get separated. And if you have somebody, इस तरफ से किसी को पकड़ा दीजिए and then pull, so things will be easier. So are embroidery needles and normal needles different? Yes,
एम्ब्रॉयडरी नीडल्स आर लिटिल लॉन्गर एंड द आई जो उसका होल होता है वो इट्स लिटिल बिगर. So I think we are done with today's class. If you have any queries. Yes, we can take up queries for just like 2 minutes. मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए queries लेते हैं. So I have enabled the chat here, guys. मैंने chat enable किया है. Please अपनी queries भेज दीजिए. Please do send up your queries here. All right. Needle size. Sorry. What would be the size of the needle used here? These are embroidery needles and their size are given in the PDF. Okay. I think it's 16 number because in the packet it's not mentioned. So I don't want to misguide you. It's written in the PDF. I've mentioned it properly. All right, no worries. So back side में भी आती है क्या? Sorry? Back side में भी आती है क्या? Back size में means I didn't get you. Back side. Back side. यानी पीछे के साइड में भी डिजाइन आती है क्या? हाँ, पीछे की साइड डिजाइन आएगी बट इट्स नॉट रिवर्सिबल, है ना? ये रिवर्सिबल नहीं रहता है. जैसे हम एक और वर्क करेंगे दैट इज कसूती, तो वो रिवर्सिबल रहता है. आप दोनों साइड से देखोगे तो सेम ही दिखेगा. ये भी सिमिलर दिखता है बट जस्ट बिकॉज ऑफ द थ्रेड दैट इज ट्रैवलिंग, वो उसको मैं आपको एक दो एम्ब्रॉयडरीज हो जाए देन उसकी भी टेक्निक बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हो अपने थ्रेड्स को और नीट कर सकते हो वर्क को. फाइन, बिकॉज टुडे इट्स अ बिगनर्स क्लास और फर्स्ट क्लास है, तो आई डिडंट वांट टू मेक इट वेरी टफ. ये देखो जैसे पीछे कितना ऐसा है क्योंकि धागा ट्रैवल कर रहा है, तो कांथा में ऐसा ही रहता है. ठीक है. So can you send? Yes, please continue. So it's like this only. It will not give you a very clean finish. कांथा एम्ब्रॉयडरी में बहुत क्लीन फिनिश नहीं आता है, बट स्टिल यू कैन मैनेज इट टू बी लिटिल क्लीनर बिकॉज बहुत गंदा भी पीछे से अच्छा नहीं लगता है. तो थोड़े से आप धागे कम ट्रैवल करिए, बहुत दूर दूर नहीं ट्रैवल करना चाहिए, नहीं तो वो फंसते हैं. आपका कैमरा ऑफ है? मेरा कैमरा ऑफ है. Yes, now it's fine. Yes. बहुत दूर दूर इनको ट्रैवल मत करिए. जैसे आपका ये डिजाइन खत्म हुआ तो आप इसका थ्रेड यहीं खत्म कर दीजिए, यहाँ से उठा के यहाँ मत ले जाइए. फाइन. इससे क्या होगा, बहुत बड़े थ्रेड्स नहीं ट्रैवल होकर दिखेंगे और वो सब फिर फंसते हैं. इफ यू सपोज इफ यू आर मेकिंग अ दुपट्टा, तो इट विल गेट एंटैंगल्ड विथ योर ज्वेलरी. आपकी कंगन में और आपकी चूड़ी में वो सब में फंसने लगेंगे. तो इट्स बेटर कि छोटा डिजाइन है तो वो कंप्लीट करने के बाद जैसे इतना इतना ट्रैवल कर लो, ठीक है, छोटा डिजाइन कंप्लीट करके धागा वहीं फिनिश कर दो, फिर दूसरा धागा स्टार्ट करो. सो दिस इज द टिप दैट यू डोंट हैव टू मूव. जैसे ये फ्लावर किया तो आप सोचोगे ये भी इसी कलर का फ्लावर है तो मैं यहाँ से यहाँ जंप कर लेती हूँ, पर नहीं, उससे आपका धागा भी खींचेगा और आपकी एम्ब्रॉयडरी भी का फिनिश भी उतना अच्छा नहीं दिखेगा फ्रंट में. All right. So can you send the pattern on the group as well? Sorry, what pattern? The designing pattern. Yeah. The printout. The printout? Yes. You want it in the group? Yes, you can send it. Okay, I'll share it. No problems. Okay, so what was the sequence for placing the carbon? Okay, so first you will take your fabric, fine, then you place your carbon, and then on top of it your pattern, and the carbon will be facing towards the fabric. ये जो blue वाला part है ये fabric की तरफ होगा ताकि design इसके ऊपर आए, and then do the tracing. ठीक है. All right. So guys, I can see many person has completed over here. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने already कर लिया है सारे stitching जो सिखाए थे, which is really amazing. And we would love to have all those pictures in the group as well. आप खुद complete करके group में भी pictures भेज दीजिएगा. As of now,
we have to end this session. तो अभी के लिए सेशन को एंड करना है. So the queries which I have missed during the session, please send up your queries in the group during the AMA timing given. So जो AMA timing दिए गए हैं ग्रुप में, उस टाइम पे आप अपनी क्वेरी भेजिएगा एंड रिचा यहाँ पे आपकी क्वेरीज को रिप्लाई कर देंगी. And we have an exciting news, guys, that we have an upcoming nail art course which is of 149 rupees only for 5 days, where you can learn different kind of nail arts like chrome nails and water decals, foil nails, holographic nails, ombre nails. तो यहाँ पे आप 5 दिन में 149 के प्राइस में नेल आर्ट सीखेंगे, जो डिफरेंट तरीके के नेल आर्ट हैं, जो है होलोग्राफिक नेल्स, ओम्ब्रे नेल्स, ब्राइडल नेल आर्ट. तो ये सारे आप सीखने को मिलेगा आपको. और नेल आर्ट शुरू हो रहा है हमारे मई मंथ से, वो भी 5 मई को. So we are starting the nail art session from 5th May. So for whoever wants to join up, please let us know in the group. जो भी हमको join up करना चाहते हैं nail art course में, तो please अपने group में ज़रूर बता दीजिएगा. So in tomorrow's session we are going to learn about कसौटी embroidery. तो कल के सेशन में हम लोग कसौटी एम्ब्रॉयडरी के बारे में सीखेंगे. सो डू गिव अस अ फीडबैक ऑन टुडेज सेशन गाइस. आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा हम लोगों को. एंड थैंक्स अ लॉट रिचा फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस thrice for us with all this patience and different kind of ideas and designs over here. Thanks a lot for attending the session, everyone. So we'll meet tomorrow, which would be on Monday, sorry. So Monday को हम लोग meet करेंगे, as Saturday and Sunday is off, and we will be having the group closed as well. तो Saturday Sunday को group closed रहेगा और छुट्टी है. So Monday को हम लोग मिलेंगे. We'll meet on Monday at same time. So bye everyone. Bye Richa. Bye bye. Have a nice day. Have a great weekend, guys. Do practice Yes. on the embroidery work. Yes, yes. And show us some nice designs on Monday. Yes, that'll be great. So bye. Bye bye.